نامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جب حیا ہی نہیں تو ساری برائیاں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک محبوب ہے جو زیادہ اخلاق والا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ رکن اسمبلی شکیل عامر کی قیادت میں بودھن ترقی کی راہ پر گامزن، ان کی جانب سے بلال تالاب پر 45,50,000 کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ 100 سالہ تاریخی آل انڈیا پریسائڈنگ آفیسرز کانفرنس کا کل آن لائن انعقاد۔ لوک سبھا اسپیکر کی صدارت میں ملک بھر کے اسمبلی اسپیکر کریں گے شرکت۔ ریاست تلنگانہ کے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کریں گے نمائندگی۔ ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی، بلیک ملرز کے برانڈ امبیسڈر پی یو سی کمیٹی و آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی۔ بیرکور میں چیتے کی گرد سے عوام میں ڈر و خوف کا ماحول، محکمہ جنگلات کی جانب سے کارروائی کا آغاز۔ گنیش تہوار میں پرامن ماحول و ناگہانی واقعات کی روک تھام کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے کنٹرول روم کا قیام، پولیس کمشنر کارتیکیا کا صحافتی بیان۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایم ایل اے شکیل عامر کی قیادت میں بودھن اسمبلی میں ہر طبقہ خوشحال۔ رکن اسمبلی شکیل عامر کی ہدایت پر بلال تالاب پر 45,50,000 کی لاگت سے پائپ لائن کے کاموں کا ٹی آر ایس قائدین کے ہاتھوں آغاز، عوام میں خوشی کی لہر۔ بودھن حلقہ اسمبلی کی ترقی کے لیے رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے ہر روز مختلف ترقیاتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آج ان کی ہدایت پر بودھن بلال تالاب سے آس پاس کے کسانوں کو پانی کی سربراہی کے لیے بلال تالاب پر 45,50,000 کی لاگت سے پائپ لائن کے کاموں کا آج بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی ہدایت پر بودھن بلدیہ چیئرمین تمو پدما شرت ریڈی، ڈی سی سی بی ڈائریکٹر گردھاور گنگا ریڈی، راجیشور چیئرمین وی آر دیسائی، کسان سیل صدر لنگا ریڈی، میونسپل فلور لیڈر رادھا کرشنا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رکن اسمبلی شکیل عامر کی قیادت میں گزشتہ 6 سالوں میں بودھن میں کافی ترقی ہوئی ہے اور ہر علاقے میں بنیادی سہولت کی فراہمی کے لیے کافی کام کیے جا چکے ہیں اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں کام کیے جا رہے ہیں۔ اس تقریب میں محکمہ آبپاشی ڈی لوکیا نائک، اے ای سرینیواس، ورکنگ انسپکٹر رویندر، مقامی سرپنچ، کسان و دیگر نے شرکت کی۔ బెలాల్ చెరువు నుంచి ఏదైతే సాగునీటి కోసం బెలాల్ కెనాలు వెళ్తుందో ఈ ఆయకట్టు కింద 1,600 ఎకరాలకి సాగునీరు అందించే ఈ కెనాల్ యొక్క ఈ పైప్ లైన్ ఒక 4 సంవత్సరాల నుండి నిరుపయోగంగా ఉన్నందువల్ల రైతులందరూ మన ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారి దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది। వారు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ పైప్ లైన్ మరమ్మతుల కోసం 42.5 లక్షలు వెంటనే శాంక్షన్ చేపించి ఈరోజు పనులు ప్రారంభించున్నారు। అతి త్వరలో ఈ పైప్ లైన్ రిపేర్లు 1921 सितंबर 15 तारीख को शिमला में मुनक़िदा पहला ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस मुकम्मल होकर 100 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र बरोज़ चारशंबे को 81वीं ऑल इंडिया असम्बली स्पीकर्स का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलू ने कहा कि कानून साज इमारत में क़याम अमल में लाए गए वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत मुनक़्क़िद होने वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासत तेलंगाना से कानून साज स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल प्रोटियम चेयरमैन वी भोपाल रेड्डी, असम्बली डिप्टी स्पीकर श्री पद्मराव गौड़ शिरकत करेंगे। इस तरह से राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन और मुल्क में वाक़ 28 रियासतों के असम्बली स्पीकर और मरकज के ज़ेर इख्तियार रियासतों के 3 असम्बली स्पीकर व दीगर रियासतों से 6 रियासतों के लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन शिरकत करेंगे। विनायक चौथी तकारीब के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया।
ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتکیہ نے پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ونائک چوتھی تقاریب کے پیش نظر کسی بھی طرح ناگہانی واقعات کو روکنے کے مقصد کے تحت پولیس کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو کہ 24 گھنٹے عوام کے لیے دستیاب ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پرامن ماحول کو درہم برہم کرنے والے مشکوک و شرپسند عناصر کے بارے میں واقفیت حاصل ہونے کی بنا پر فوری طور پر کمشنریٹ کے احاطے میں قیام عمل میں لائے گئے پولیس کنٹرول روم نمبر 08462226090 پر ربط پیدا کر کے اطلاع فراہم کرنے کی خواہش کی۔ بھینسہ شہر کے عوام کی حفاظت و جرائم کی روک تھام کے لیے CCTV کا قیام، گنیش تہوار کی تیاریوں کے لیے شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین فضل اللہ خان کے ہمراہ مقامی پولیس کا دورہ و انتظامات کا لیا جائزہ۔ بھینسہ شہر میں محکمہ بلدی کی جانب سے 1,60,00,000 کی لاگت سے عوام کی حفاظت کے مد نظر CCTV کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا آج بھینسہ بلدی نائب صدر نشین جابر احمد کی ہدایت پر بھینسہ شہری صدر فضل اللہ خان نے گنگارام میں بھینسہ عیسائی کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے CCTV کے قیام و گنیش تہوار کے مد نظر راستہ و بریگیڈز کی فراہمی کے مطابق تبادلہ خیال کیا اور محکمہ پولیس گنیش تہوار کے مد نظر حفاظتی انتظامات کے لیے کئی ہدایتیں دی اور اسی موقع پر رحمت خان، کونسلر عبدالماجد، عبدالرحمان قریشی، منظور احمد قریشی و دیگر موجود تھے۔ سنگاریانی کالونی میں پیش آئے واقعے کو افسوسناک قرار دیا، حکومت کی جانب سے فوری طور پر قاتل کو سخت سزا دینے کا PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے کیا انکشاف۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے MLC ملیشم کے ہمراہ آج TRS بھون میں پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے TPCC کے سربراہ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی جو نوٹ برائے ووٹ کے معاملے میں کلیدی ملزم ہے، وہ مستقل طور پر جیل جانے کا اظہار کیا اور بتایا کہ حکمران جماعت اور فلاحی اسکیموں پر کیچڑ اچھالنے سے گریز کرنے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ حکومت SC ST BC اور اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود کی اسکیموں پر عمل پیرا ہے۔ کیا کسی BJP و کانگریس سے منسلک ریاستوں میں اسی اسکیمات موجود ہونے کا سوال کیا اور کہا کہ حال ہی میں بنڈی سنجے کی جانب سے منعقدہ پیدل سفر میں عوام کی جانب دلچسپی نہ لینے پر ناکام ہونے کا اظہار کیا اور انہوں نے بنڈی سنجے کو کہا کہ اگر دم خم ہے تو مرکز سے 20,000 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے کسانوں سے وابستہ ذخیرے کو خریدنے کے متعلق سوال کیا اور انہوں نے ریونت ریڈی کو بے بنیاد الزامات کے بجائے شائستگی پر مبنی سیاست کرنے کا انکشاف کیا۔ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు రాకపోతే ఐటీ ఇప్పటికే 8,373 పరిశ్రమలు వచ్చినాయి. అట్లాంటి పరిశ్రమలు రాకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఆగిపోతే దానికి కర్త కర్మ క్రియ ఈ బ్లాక్ మెయిలర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రేవంత్ రెడ్డి అవుతారు. హోల్సేల్ బ్లాక్ మెయిలర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఐటీ నుంచి పడితే రైతుల దాకా ఇవన్నీ వదలడు. అట్లాంటి వ్యక్తి నా రేవంత్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి దయించి మేము చెప్తా ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ పెద్దలకు చెప్తున్నాం, ఒక కమిటీ కూడా వేసుకున్నారని విన్నాం మేము మీడియా మిత్రుల ద్వారా. హై లెవెల్ కమిటీ అని కాంగ్రెస్ లో ఈయనని కాదని, ఈయన విధి విధానాలు నచ్చక సీనియర్లు ఎవరు స్టేజ్ల మీదకి వస్తలేరని చెప్పి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ కూడా వేసినట్టు తెలిసింది. వాళ్ళకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఈయన ప్రవర్తన మార్చుకోమని చెప్పండి, లేదంటే ఈయనను కొన్ని రోజులకు ఎర్రగడ్డలోని మెంటల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి మరి ఇంకా హై లెవెల్ కమిటీ ఉందో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నడుచుకోండి। गणेश त्योहार की पेश नजर फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान में कहा कि कमिश्नरेट के अहाते में वाक़ निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजनों में विनायक चौथी के मद्देनजर किसी भी अफराद की जानिब से फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश करने वालों पर पुलिस कमिश्नरेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना गेजेट पार्ट 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑन 8 सितंबर 2016 जियो नंबर 163 अंडर सेक्शन 122 2F और BF और 22A हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 फसली नंबर 1 एक्ट के तहत मुजरिम करार दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई मोहलिक हथियार या लाठियां व दीगर के इस्तेमाल पर जुर्म करने पर आमादा होने वालों पर इंडियन एम्स एक्ट और IPC सेक्शन के तहत केस दर्ज किया जाएगा। और इन्होंने मजीद कहा कि गणेश त्योहार को आपसी भाईचारगी से हर साल मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान शर पसंद अनासर की जानिब से
फिरका वाराना पुरअमन माहौल को दरहम बरहम करने वालों पर राउडी शीट केस दर्ज करने का इजहार किया और बताया कि तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर पुलिस साइबर क्राइम की जानिब से कड़ी नजर रखने का इंकशाफ किया। अपनी मुनफरिद स्कीमात के जरिए हर गरीब को बावखार जिंदगी देने वाली जमात सिर्फ टीआरएस अवाम टीआरएस को रियासत में मुस्तहकम करने के लिए आगे आए। आर्मूर में टीआरएस रुकनियत साजी मुहिम से टीआरएस कायदीन का इजहार ख्याल। नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 17 सैयद फयाज की निगरानी में वार्ड नंबर 17 की मुख्तलिफ टीआरएस कमेटियों का इंतखाब किया गया। ये इंतखाब टीआरएस सीनियर लीडर पंडित पवन और म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू की निगरानी में अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले टीआरएस अखिलती कायद समीर अहमद ने शिरकत करते हुए बताया कि रुकन असम्बली आर्मूर व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात पर आर्मूर के तमाम वार्डों में टीआरएस पार्टी, माइनॉरिटी, SC, BC, यूथ व दीगर कमेटियों का इंतखाब किया जा रहा है ताकि हुकूमत की स्कीमात अवाम तक और अवाम के मसाइल हुकूमत अहदेदारों तक पहुँचे। इस मौके पर पंडित पवन ने नौ मुंतखबा कमेटी कायदीन को मुबारकबाद देते हुए बताया कि रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी के इल्म में लाते हुए वार्ड नंबर 17 के मुख्तलिफ मसाइल को हल किया जाएगा। इन्होंने नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज के इक़दामात की सताइश। इस मौके पर इस इजलास में आने वाले तमाम कायदीन का सैयद फयाज ने शुक्रिया अदा किया और रुकन असम्बली आर्मूर के तरक्याती कामों की सताइश की और टीआरएस कमेटी मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन फरतुल्ला खान, नेहालुद्दीन, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक अहमद, अयान, इम्तियाज, सुधाकर, मधुकर और दीगर मौजूद थे। वार्ड नंबर 17 की टीआरएस पार्टी का बॉडी का इलेक्शंस हुआ, जिसमें हमारे फर्दिल अजीज़ MLA जीवन रेड्डी साहब PUC चेयरमैन के अहकामात पर आशनाधारी राजेश्वर रेड्डी की सदारत में ये वार्ड कमेटी डाली गई। आज हमारे काउंसलर जनाब फयाज साहब की निगरानी में हुआ। मैं तमाम लोग जो कि एक वार्ड के कमेटी के टोटल 9 कमेटियाँ तश्कील दी गई, जिसमें कुछ कम पार्टी के अहकामात पर 90 जनों को लेना है और यूथ भी बड़ा तमाम लोग से कमेटी को चुने, डेवलपमेंट के लिए नुमाइंदगी करें। इंशाअल्लाह ताला हम भी MLA साहब के नुमाइंदगी करेंगे, चेयरमैन साहब को लेके फंड्स लेके आएंगे, वार्ड में बनकर बात करें। रही बात टीआरएस पार्टी, जो एक ऐसी सेकुलर जमात है जहाँ पे अब रुकने साजी मुहिम ख़त्म होने के बाद पार्टी को निचली सतह से मजबूत करने के वास्ते पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब के अहकामात पर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी साहब ने तमाम टीआरएस के अहम कायदीन को हिदायत दी कि म्यूनसिपाल्टी के 36 वार्डों में वार्ड जाकर जिम्मेदारी से वार्ड की कमेटी तश्कील दें और ये कमेटी आने वाले इंतखाबात में प्लेयर की तरह, सुतून की तरह होगी, क्योंकि सुतून अगर मजबूत है तो ही घर की पूरे वार्ड कमेटी तेलंगाना वाइज की अहकामात पर KTR वर्किंग प्रेसिडेंट की अहकामात पर और हमारे अली जनाब फर्दिल अजीज़ PUC चेयरमैन MLA जीवन MLA साहब की सदारत पर और राजेश्वर रेड्डी साहब इंचार्ज की जेर निगरानी में आज हमारा 17 नंबर वार्ड में वार्ड कमेटीज़ डाला गया है। और 17 नंबर वार्ड कमेटीज़ में जो सीनियर कमेटी है और वार्ड कमेटी है और माइनॉरिटी कमेटी है, BC कमेटी है और SC कमेटी है और ये पूरे वार्ड कमेटियों को आज डाला गया है। इसी मौके पर हमारे वार्ड के बड़े लोग भी यहाँ पर शिरकत फरमाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे यूथ मेंबर्स भी आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही वार्ड कमेटियों में तेलंगाना टीआरएस पार्टी जो कामा स्कीमा लेके आ रही उसी पर अमल करने की वादा हमारे KCR साहब भी करें, पूरे डेवलपमेंट के कामा करने का वादा करें। हमारे चेयरपर्सन साहब भी आ जाकर असातिज़ा शफ़क़त के साथ तरबियत करें। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़्क़िदा असातिज़ा व मुअल्लिमीन की तरबियती इज्तिमा से मुजाहिद मिलत हज़रत मौलाना अबरारुल हुसैन साहब रहमानी व हज़रत मुफ्ती अकबर साहब क़ासमी का अहम खिताब।
शफीक व मेहरबान दर्द दिल रखने वाला शख्स कौम व मिलत को सुधार सकता है। आज हम इल्मी व इल्मी एतबार से कमजोर होते जा रहे हैं। अपने इल्म व अमल में इजाफे के लिए अकाबिर उलमा कराम की सौनहयात पढ़े, बिलखुसूस हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती अकाबिर ने किस तरह इल्म दीन की खिदमत की है, वो सारे नखूश मिलेंगे। इसी तरह फिरका बातिला के रद में काम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मुअत्तला को वसी करें, रोजाना फिरका बातिला के खिलाफ दलाइल को पढ़ें और अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। आज रोज बरोज नित नए फितने वजूद में आ रहे हैं, लिहाजा इल्मी सलाहियत को बढ़ाएं, इसके साथ सलाहियत भी अपने अंदर पैदा करें। तहज्जुद का एहतिमाम करें, नफिल रोजों का एहतिमाम करें, रोजाना कम अज कम 2 घंटे जिक्र करें। आज दुनिया रूहानियत से खाली होती चली जा रही है। हमारे इल्म व अमल में जान, तज़किया, नफ्स, जिक्र और अहले अल्लाह के ताल्लुक से ही आ सकती है। मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना अबरारुल हुसैन साहब रहमानी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी ने सदारती खिताब फरमाते हुए कहा कि हमारा और आपका यहाँ जमा होना ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ की निस्बत है। हमारे अकाबिर ने अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की खातिर और एक इंसान के ईमान को बचाने के लिए अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की। हजरत हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक ये बात मिलती है कि एक जगह से इत्तला मिली कि मुसलमानों की ईमान का मसला है, क्योंकि गांव में कादियानी आके बैठे हैं, लिहाजा आपकी जरूरत है। घर में इनका लड़का करीबुल मर्ग है, बीवी मना कर रही है, तो कहा कि अगर बेटा जिंदा रहा तो मेरे दुआ करना कहना, और अगर इंतकाल हो जाए तो हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। जब बस में बैठते तो लोग आकर दरख्वास्त की कि लड़के का इंतकाल हो गया है, आप नमाज जनाजा पढ़कर तशरीफ ले जाए। तो कहा कि तदफीन और नमाज जनाजा ये फर्ज कफाया है, मगर ईमान की हिफाजत फर्ज ऐन है। और कहा कि मेरे बच्चे के लिए मैं उम्मत के मुसलमानों के ईमान को जाने नहीं दूंगा। ये थी खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल और ईमान के कदर व मंजिलत की अहमियत कि आज हमारे नजदीक ईमान की कदर व कीमत है। एक एक इंसान के मुसलमान के ईमान के साथ साथ इनके अमाल की हिफाजत भी जरूरी है, वरना ये बद इल्मिया और ये बद किरदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता कैफर की तरफ ले जाएगी। अपने और इतराफ के इलाकों में ईमान के साथ साथ इखलाक की फिक्र करना चाहिए, तब भी हम कामयाब मौलिम है। बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ हमारे बड़ों ने जो किताबें लिखी है, इनका 3 बातें हैं। जब बच्चा घर में दाखिल हो या घर से बाहर निकले तो सलाम का आदी बनाओ, इससे बच्चों में आजिज़ी इनकिसारी पैदा होती है, क्योंकि सलाम एक ऐसी दुआ है जो दिल से अपने भाई के लिए निकलती है। जब सलाम का आदी बनेगा तो मिजाज में नरमी आती है। दूसरे, नमाज का आदी बनाओ, आदत आहिस्ता आहिस्ता इबादत में तब्दील होती है। ये नमाज गुनाहों से बचाती है, चेहरे पर नूर जाहिर होता है, अल्लाह की खशियत और डर गलत रास्तों से बचाएगी, क्योंकि कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, वरना हमारी नमाज एक रस्म बन चुकी है। तीसरे, बड़ों का अदब एहतराम सिखाओ, इससे हमारी नस्ल दूर है, और आज माँ बाप तो दूर की बात है, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम खत्म हो चुका है। 100% हमारी बस्ती के लोग नमाजी बाइखलाक बने, ये हमारा नज़्बुल-ऐन है। जलसे की इब्तिदा हाफिज अबरार मौलिम एक्स रोड की क़िराअत कलाम और हाफिज अबरार रहमत नगर की नाते पाक से हुई, जबकि कलामत निगरान मजलिस मौलाना नजरुल हक ने पेश की। हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी नाजिब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी ने इजलास की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर मुफ्ती ख्वाजा शरीफ मुज़ाहिरी, मौलाना मंजूर आलम मुज़ाहिरी, हाफिज मुश्ताक हलीमी, इसी तरह जमील मौलमीन, मुकातिब कुरानिया व मौज़िज़ शहरियान के अलावा उलमा, हाफिज मजलिस के ज़िम्मेदारान मोहम्मद जावेद अली, मीर फारूक अली, अलहा सैयद अजमत अली, सैयद जाकिर अब्दुल रहीम, मोहम्मद फेरोजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली, क़ाज़ी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बालकुंडा के मोरताड़ मंडल डोनकल देहात में यूथ मेंबरान ने एक 6 साल मासूम लड़की चैत्रा की असमत रेजी व कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को सख्त सजा का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकुंडा असेंबली मोरताड़ मंडल दोरनकल देहात में यूथ मेंबरान ने एक 6 साल बच्ची चैत्रा की असमत रेजी व कत्ल की वारदात के खिलाफ हनुमान मंदिर से देवी के मुजस्सिमे तक कैंडल मार्च रैली निकाली गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि आज सारे मुल्क में असमत रेजी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। इसका सबब यही है कि हमारे मुल्क में कानून पर सख्त अमलावरी नहीं होने का इजहार करते हुए कहा कि चैत्रा
कि असमत रेजी व कत्ल में मुलविस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में यूथ मेंबरान व दीगर अफराद ने शिरकत की। आइंदा इंतखाबात में निजामाबाद अर्बन के बमशमूल 25 हल्का असम्बली इजलास से TJS उम्मीदवारों के मुकाबले का ऐलान। प्रोफेसर कोदंडराम। आने वाले जनरल असम्बली इंतखाबात में रियासत तेलंगाना में 25 मुकामात से और निजामाबाद अर्बन से तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल करने का आज प्रोफेसर कोदंडराम ने इजहार किया। तेलंगाना जन समिति के बानी प्रोफेसर कोदंडराम ने आज निजामाबाद शहर का दौरा करते हुए बोरगांव इलाके में वाक़ फोरम हाउस पर शहर की अहम शख्सियतों के इजलास से खिताब दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जन समिति रियासत में मजबूत मुकाम रखती है, जिसका वाज़ेह सबूत वरंगल MLC इंतखाबात थे, जिसमें इन्होंने 1 रुपया भी खर्च न करते हुए 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इस इजलास से MA अजीम कुरैशी सदर माइनॉरिटी सेल निजामाबाद अर्बन ने खिताब करते हुए पार्टी को रियासत में मजबूत करने के इक़दाम करने पर जोर दिया। इन्होंने आने वाले इंतखाबात निजामाबाद अर्बन से मशहूर जर्नलिस्ट अंबुजी प्रसाद को उम्मीदवार बनाने की पार्टी से अपील की और दावा किया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में तेलंगाना जन समिति की तायद के बायस कांग्रेस उम्मीदवार को 45,000 वोट हासिल हुए। अगर प्रसाद अन्ना उम्मीदवार होते तो इनकी कामयाबी यकीनी थी। इस मौके पर कसीर तादाद में सियासी कायदीन और नौजवान मिस्टर जगदीश नरसागौड, मोहसिन बलाला, जफर LLB के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। फासला है, आप जान सकते हैं। तो ये फासला है, लेकिन हमें इतना वोट क्यों आया? क्योंकि लोग पसंद करते हैं। तो पसंद करने वाले हमें पैसा नहीं दिए तो भी वो लोग हमें वोट दिए। तो ऐसे भी लोग बहुत है जो पैसे देखकर वोट नहीं डालते, पैसे के लिए वोट नहीं डालते, वोट को बेचते भी नहीं। तो ऐसे लोग बहुत है, उनका हमारा मदद इकट्ठा करेंगे तो हमें फ़ायदा हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये काम करेंगे हम। ये तो शुरुआत है, लेकिन अब से लेकर के हर महीना मैं आऊँगा और हमारा काम भी थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा पार्टी को भी मजबूत करेंगे। और मैं जैसा बोला, ये 2 मेंबर्स माइनॉरिटी कमेटी में, एक हमारा स्टेट खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस में कोई इजाफा नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फीस में इजाफा 18,000 था, 35,000 तक इजाफा। सेल्फ फाइनेंस कोर्सों की फीस दुगनी। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जारिया साल गुज़िश्ता साल की फ़ीस निज़ाम में अमल किया जाएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फ़ीस में इजाफा किया गया है, जबकि खानगी कॉलेजेस को गुज़िश्ता साल की फ़ीस ही जारिया साल बरकरार रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फ़ीस में मामूली इजाफा किया गया है और 35,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। जारिया साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नशिस्तों पर भर्ती के लिए इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। रियासत में खानगी कॉलेजेस फीस और नशिस्तों की तमाम तफसीलात को तुलबा के लिए हुकूमत ने दस्तयाब रखा है। तुलबा अपने पसंदीदा नशिस्त के लिए 16 सितंबर तक ऑप्शन को दर्ज कर सकते हैं। ताहम स्लॉट बुकिंग का अमल आज पीर के दिन खत्म हो जाएगा। रियासत भर में 172 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मुसल्लिमा हैसियत दी गई है, जिसमें 15 सरकारी कॉलेजेस जबकि 157 खानगी कॉलेजेस शामिल हैं। इन कॉलेजों में कन्वीनर कोटे के तहत 65,219 नशिस्तें पाई जाती हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 3,645 और खानगी में 61,574 नशिस्तें शामिल हैं। इसी तरह 189 बी फार्मेसी कॉलेजेस में 4,550 नशिस्तें और डी फार्मेसी में 53 कॉलेजेस और 741 नशिस्तें हैं। यूनिवर्सिटी हुदूद के सरकारी कॉलेजेस में जारिया साल से फीस में इजाफा किया गया है। 18,000 रुपये ता 35,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है, जबकि चंद कॉलेजेस में मजीद इजाफा किया गया है। बिलखुसूस सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में फीस को दुगना कर दिया गया है, जहां 35,000 ता 70,000 तक इजाफा हुआ है। टीआरएस सरकार असम्बली को कारकर्दगी और मकबूलियत की बुनियाद पर आइंदा चुनाव में टिकट अवामी नाराजगी का पता चलाने चीफ मिनिस्टर का सर्वे। मजबूत अपोजिशन के नतीजे में टी सरकार का टिकट खतरे में।
تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے ابھی 27 ماہ باقی ہے، لیکن چیف منسٹر KCR نے ابھی سے پارٹی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد TRS کو کمزور اپوزیشن کا سامنا تھا، لیکن دوسری میعاد میں کانگریس و BJP سے TRS کو سخت چیلنج درپیش ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، جس کے پیش نظر چیف منسٹر امیدواروں کی جانچ شروع کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تیسری میعاد کی تیاری میں چیف منسٹر نے تمام موجودہ ارکان اسمبلی کی کارکردگی پر سروے کا آغاز کیا۔ ارکان اسمبلی کے خلاف عوامی ناراضگی کا پتہ چلانے سروے کیا جا رہا ہے، جس میں پتہ چلے گا کہ ارکان اسمبلی نے کس حد تک ترقیاتی اور فلاحی کام کیے ہیں۔ ارکان اسمبلی کی عوامی مقبولیت کی بنیاد پر انہیں دوبارہ ٹکٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ ایسے ارکان کا ابھی سے انتخاب کیا جائے جو کامیابی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ TRS ارکان اسمبلی کی تعداد 103 ہے، جبکہ 2018 میں 88 ارکان منتخب ہوئے تھے۔ باقی ارکان کانگریس و تلگو دیشم سے شامل ہوئے ہیں۔ 119 رکنی اسمبلی میں چیف منسٹر تیسری میعاد کے لیے کم از کم 90 نشستوں پر کامیابی کا نشانہ رکھتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اپوزیشن کے بہتر موقف کے باوجود TRS کو 70 تا 80 نشستوں پر کامیابی ملے گی، کیونکہ حکومت نے فلاحی اسکیمات سے کمزور و پسماندہ طبقات کو مالی فائدہ پہنچایا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف آزادانہ سروے ایجنسیوں کو متحرک کیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ 3 ماہ میں رپورٹ پیش کریں۔ 2018 میں منتخب 88 ارکان میں 68 دوسری مرتبہ منتخب ہوئے۔ اپوزیشن کے مضبوط موقف کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر نہیں چاہتے کہ کسی بھی حلقے میں ایسے امیدوار کو میدان میں اتارا جائے جس سے عوام میں ناراضگی ہے۔ 2018 میں KCR نے 5 ارکان اسمبلی کو ٹکٹ سے محروم رکھا تھا، اور ان نشستوں پر جن نئے امیدواروں کو موقع دیا گیا وہ تمام تر کامیاب رہے۔ کورونا میں اسکول بند ہونے سے 80% بچوں کی پڑھائی بھی متاثر۔ کورونا وبا کے دوران ملک میں 11 اسکول بند ہونے سے 14 سے 18 سال کی عمر کے تقریباً 80% بچوں کے سیکھنے پر اثر پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کا فنڈ برائے طفال کے ایک تحقیقی مطالعے میں یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ مطالعے میں کورونا کے دوران اسکولز کے بند ہونے کے دوران بچوں کے سیکھنے پر اثرات کا اندازہ لگایا گیا، جس میں زیادہ تر طلباء اور ان کے والدین نے تسلیم کیا کہ بچوں نے وبا سے پہلے کے مقابلے میں بہت کم سیکھا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے دور میں 11 اسکولی تعلیم آن لائن ہوگی، اور آن لائن کلاسوں کا ان بچوں کی تعلیم پر زیادہ اثر نہیں پڑا جن کے والدین نے اسمارٹ فون کا انتظام کیا تھا، لیکن کم وسائل والے بچے اس نظام میں پڑھائی سے محروم ہو گئے تھے۔ حکومتوں کی اہم کوششوں کے باوجود ڈیجیٹل آلات تک رسائی نہ ہونے سے فاصلاتی تعلیم کو متعارف کرانے کی کوششوں میں رکاوٹیں پیش آئی۔ انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر یاسمین علی نے ملک میں 11 اسکولز کو دوبارہ کھولنا خوش آئند قدم قرار دیا ہے، اور کہا کہ 11 اسکول بچوں کی زندگی کا مرکزی حصہ ہے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر دوبارہ کھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے طویل عرصے تک اسکول بند رہنے سے کئی بچے سیکھنے، سماجی میل جول اور کھیلنے کے وقت سے محروم ہو گئے ہیں، جو ان کی مجموعی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان کی ریاستوں میں اسکولز کا محفوظ اور بتدریج دوبارہ کھلنا ایک خوشائند قدم ہے، کیونکہ بچے انفرادی طور پر سب سے اچھا سیکھتے ہیں اور ان کے سیکھنے کے مزید نقصانات کو روکنے میں مدد کرے گا۔ سرکاری اسکولز کے طلباء کو ڈیجیٹل کلاسز میں دشواریاں، والدین سیل فون اور دیگر اخراجات کے مستعمل نہیں۔ تلنگانہ حکومت نے کورونا کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی اداروں کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، اور آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ آف لائن کلاسز جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم طلباء آن لائن کلاسز کی سہولت سے محروم ہیں۔ کورونا وبا کی شدت میں کمی کے باوجود والدین اور سرپرست بچوں کو آف لائن کلاسز کے لیے روانہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ کورونا کی امکانی تیسری لہر کے اندیشے کے تحت سرکاری اور خانگی اسکولز میں طلباء کی حاضری انتہائی کم درج کی جا رہی ہے۔ آن لائن اور ڈیجیٹل کلاسز کے سلسلے میں خانگی اسکولز کی مقابلہ سرکاری اسکولز کے طلباء کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ وہ ڈیجیٹل کلاسز کے لیے درکار ٹیلی فون اور دیگر آلات کی خریدی سے قاصر ہے۔ حکومت نے دوردرشن، یادگیری اور TCR چینلز کے ذریعے ڈیجیٹل کلاسز کا اہتمام کیا ہے، لیکن اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت کی کمی کے نتیجے میں طلباء TSAT ایپ پر موجود اسباق کا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہے۔ طلباء اور ان کے سرپرستوں کا کہنا ہے کہ اسمارٹ فون اور دیگر سہولتوں سے محرومی کے نتیجے میں
तलबा को रात के औकात में अपने वालिदैन के फ़ोन के जरिए टी-सैट के असबाक का मुशाहिदा करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। तमिलनाडु, उड़ीसा और दीगर रियासतों में गरीब तलबा के लिए हुकूमत की जानब से लैपटॉप और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौरास्ते के पास ग्रुप ऑफ हेल्पिंग फ्रेंड्स के जेर निगरानी में संगारेनी कॉलोनी में मुक़ीम 6 साला मासूम लड़की चैत्रा की असमत रेजी व कत्ल में मुलविस मुलजिम राजू को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया। बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौरास्ते के पास ग्रुप ऑफ हेल्पिंग फ्रेंड्स की जेर निगरानी में संगारनी कॉलोनी में मुक़ीम मासूम लड़की चैत्रा की असमत रेजी व कत्ल में मुलविस मुलजिम राजू को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए एक रोजा भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने 6 साला मासूम लड़की के साथ पेश आए वाक़े पर गहरे दुख व अफसोस का इजहार करते हुए इन्होंने इस तरह के वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए मासूम लड़कियों की मासूम 6 साला लड़की के असमत रेजी व कत्ल में मुलविस राजू को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया। ప్రభుత్వము అరెస్ట్ చేయలేదు, నిందితులను శిక్షించలేదు, ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా ఆదుకోవట్లేదు. ఇది చాలా శోచనీయమైన విషయము. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మేము హెల్పింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా బంజారా సేవా సంఘం యొక్క ఆధ్వర్యం आर्मड रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से कुरमा फंक्शन हॉल के लिए 50 लाख मालियाती फंड मुख्तस करने पर कुरमा तबके के रियासती सदर ए मलेशम ने किया इजहार तशक्कुर। आर्मड रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से आर्मड हल्के सतह पर तामीर होने वाले कुरमा फंक्शन हॉल के लिए 50 लाख मालियाती फंड्स को मुख्तस करते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी को संगम से वाबस्ता मेम्बरान के हवाले करने पर आज कुरमा तबके के रियासती सदर व MLC ए मलेशम ने दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। जेल में कैदियों से मुलाकात बहाल। जिले के तमाम जेल में कैदियों से मुलाकात पर आर्जी रोक को खत्म करते हुए कैदियों के रिश्तेदारों को मुलाकात बहाल कर दी गई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 20 माह से कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। कल से मुलाकात बहाल कर दिए जाने पर जिले जेल सारंगपुर में 14 कैदियों को इनके रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाज़त दी गई। जिले जेल में 161 कैदियों की कोरोना टीका अंदाजी की गई है। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने दीगर कॉर्पोरेटर्स के हमरा मशहूर मारूफ झंडा बालाजी मंदिर में झंडा त्योहार प्रोग्राम के तहत खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने दीगर कॉर्पोरेटर्स के हमरा शहर के मशहूर मारूफ झंडा बालाजी मंदिर में झंडा त्योहार प्रोग्राम के तहत खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए कहा कि 202 साला तारीख पर मबनी मंदिर में कदीम रिवायत के तहत शहर के दीगर मुकामात पर झंडा लहराते हुए मुकद्दस मुकाम को झंडा मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंदिर चेयरमैन जारीगम गोपाल, मंदिर के अहदेदार विनोद, कॉर्पोरेटर्स कल्पना मलेश, उमा रानी व दीगर मौजूद थे। बेगुल मंडल के मुस्तकिल में चीते की हलचल से मुकामी अवाम में डर खौफ का माहौल, महकमे जंगलात से कार्रवाई का किया मुतालबा। बेरकुल मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 3 दिनों से चीते के मौजे के मुस्तकिल में घूमने के मुताबिक हासिल करदा इत्तला के तहत मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला होकर फौरी तौर पर करीब में वाक़े पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करके चीते की आमद की इत्तला देने की बिना पर पुलिस मुलाजमीन दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर इस मुकाम पर पहुँच कर चीते के जमीन पर मौजूद पैरों की अलामत का मुशाहिदा करके मुकामी अवाम को अपनी जान की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रुकन असम्बली शेखिल आमिर की क़ियादत में बोधन तरक्की की राह पर गामजान, इनकी जानिब से बेलाल तालाब पर 45,50,000 की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। 100 साला तारीखी ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का कल ऑनलाइन इनेकाद। लोकसभा स्पीकर की सदारत में मुल्क भर के असम्बली स्पीकर करेंगे शिरकत। रियासत तेलंगाना के रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी करेंगे नुमाइंदगी। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, ब्लैक मिलर्स के ब्रांड एम्बेसडर पीयूसी कमेटी व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी।
बिरकुर में चीते की गश्त से अवाम में डर खौफ का माहौल, महकमे जंगलात की जानिब से कार्रवाई का आगाज। गणेश त्यौहार में पुरअमन माहौल व नागहानी वाकयात की रोकथाम के लिए महकमे पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम का क़याम, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया का सहाफती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबर के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।